Okay, in this semester, the paper name is Environmental Studies and Law 2, and it is of 2 credits. Total would be around, I think, 24 lectures would be there. So, total end term exam is of 70 marks, and 5 marks is for your attendance, and 25 marks is for your internal assessment. Now, collect you some writing material. We are going to start first topic of module 1, that is Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Sir, will you please repeat the topic? The name of the topic is Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. See, after independence, in our constitution, we had not any special provision for, say, environmental protection. But after 42nd Amendment, 2 articles were introduced. First was your Article 48A and 51G, in which it was mentioned Article 48A and Article 51G mentions that it is the duty of the state to protect the environment, to provide clean environment to its uh, citizens, and it also included a fundamental duty that it is the duty of the citizens to protect the environment, to protect the rivers, to protect the natural resources, to have compassion for living beings. And after this UN Conference on Human Development, that is the Stockholm Conference, several laws were passed in our country. Now, so one such law is your Air Act, and some other laws are your Water Act is there, Water Prevention and Control of Pollution Act, then Air Prevention and Control of Pollution Act, then Wildlife Act is there, then your Forest Act is there. And there are different Environmental Protection Act is there. Different laws were passed from there on. So first act is your Water Act, in which your bodies, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board, were constituted. Now these two bodies um, play important role in the protection of environment, in the protection of natural resources. Your Water Act is passed earlier than Air Act, and it constituted or it conferred powers to the central government to establish two bodies. First was your Central Pollution Control Board. Please keep your mic on silent mode, everyone. Everyone, please keep your mic on silent mode. सर Yes. सर वाटर एक्ट पहले आया था एयर एक्ट से। हाँ, वाटर एक्ट पहले आया था, उसके बाद आपका एयर एक्ट आया था। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में वाटर एक्ट के बारे में पहले नहीं दिया गया, पहले एयर एक्ट के बारे में दिया हुआ है, और सारे लॉज को कवर्ड नहीं है इस पेपर में, सारे लॉज कवर्ड नहीं है। तो जितने पहले लॉज है उनको कवर कर लेंगे डिटेल में, और जो लॉज नहीं है उसको भी हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो हाँ, तो ये जो तुम्हारा वाटर एक्ट था, ये जो वाटर एक्ट है, वाटर एक्ट में ही मेन ये पावर्स थे गवर्नमेंट को कि वो कंस्टिट्यूट कर सकते हैं दो बॉडी को। अब जो दो मेन बॉडीज हैं, एक है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरा आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सिमिलर फंक्शंस है, सिमिलर पावर्स है ऑलमोस्ट। मेन डिफरेंस क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो जुरिडिक्शन है, जो एरिया है जुरिडिक्शन का, वो पूरे इंडिया में है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो जुरिडिक्शन है वो पूरे इंडिया में है, और जो आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जुरिडिक्शन है वो स्टेट के बाउंड्रीज के विद इन है। अब ये दो बॉडीज का तो हमने नाम सुना, एक है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दूसरा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। लेकिन एक तीसरी बॉडी भी है जिसको हम लोग ज्वाइंट बोर्ड्स बोलते हैं। अब ज्वाइंट बोर्ड्स क्या है? ये भी सिमिलर है आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। डिफरेंस क्या है कि कुछ जो स्टेट्स हैं, जब वो एक स्टेट बोर्ड को शेयर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वाइंट बोर्ड बोलेंगे। जैसे आप देखोगे कि हमारे कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके आपके
कैपिटल्स भी क्या है, कॉमन है, जैसे आपका पंजाब Sir, है। can you please हाँ, repeat about joint board? मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कुछ स्टेट्स जो हैं, तो आप देखोगे कि उनका जो कैपिटल है वो क्या है, ज्वाइंट है ना। जैसे आपका चंडीगढ़ जो है वो कैपिटल है आपका पंजाब और हरियाणा का। इसी तरीके से अगर मान लीजिए दो स्टेट्स ऐसा फील करते हैं कि उनका जो बोर्ड है वो क्या होना चाहिए, ज्वाइंट बोर्ड होना चाहिए, उनका स्टेट जो बोर्ड है पॉल्यूशन बोर्ड वो ज्वाइंट होना चाहिए, तो वैसे बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोर्ड बोलते हैं। जैसे आपका पंजाब और हरियाणा का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या है, आपका ज्वाइंट बोर्ड है। उसका एरिया ऑफ जुरिडिक्शन जो है वो दोनों स्टेट्स में क्या होगा, फैला हुआ होगा। ठीक है। मेन अब 3 बॉडीज हैं जो कि पॉल्यूशन को चेक करती हैं हमारी कंट्री में। फर्स्ट आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि एक नोडल एजेंसी कह सकते हो, एक ये सेंटर पे है ये बोर्ड। और दूसरे हैं स्टेट लेवल पे आपका स्टेट बोर्ड्स है या ज्वाइंट बोर्ड्स हो सकता है। अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेन फंक्शन क्या है, वो स्टैंडर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करते हैं, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करते हैं, नॉइस क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स क्या है, ये एक टाइप के आपके टेबल्स आप कह सकते हो, और इसमें क्या है, एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दिया गया है डिफरेंट पॉल्यूशन के लिए। जैसे एयर पॉल्यूशन के लिए आपका एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, वाटर पॉल्यूशन के लिए वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, नॉइस पॉल्यूशन के लिए आपका नॉइस का स्टैंडर्ड है। जैसे आपको जब नॉइस पॉल्यूशन में भी लास्ट सेमेस्टर में जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया होगा कि डिफरेंट एरियाज में हमने क्या कर रखा है, किसी एरिया को हमने डिवाइड कर रखा है, जैसे रेसिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, है ना, या साइलेंस जोन। तो अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग आपका क्या है, नॉइज लेवल है, प्रिस्क्राइब नॉइज लेवल है ना। इसी तरीके से एयर के लिए भी डिफरेंट आपके परमिसिबल लिमिट्स हैं, और वाटर के लिए भी डिफरेंट परमिसिबल लिमिट है। तो मेन फंक्शन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या है, वो पॉल्यूशन को डिफाइन करता है, पॉल्यूटेंट्स को डिफाइन करता है, और एक वो परमिसिबल लिमिट्स बनाता है, एक टेबल बनाता है, वो स्टैंडर्ड्स प्रोड्यूस करता है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी एरिया में जो वाटर का सैंपल मिल रहा है, एयर का सैंपल मिल रहा है, या जो सॉइल का सैंपल हमने कलेक्ट किया है वो पॉल्यूटेड है या वो क्लीन है। ठीक है ना, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एडवाइस करता है आपके सेंटर गवर्नमेंट को। अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में कहीं पे कुछ वैसा पॉल्यूशन हो जाए या कोई वैसा एक्सीडेंट हो जाए जिसके कारण आपका इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा हो, या कोई आपका कोई स्पेशल एरिया हो जो कि बहुत ज्यादा सीवियरली पॉल्यूटेड हो, तो वैसे एरिया को क्लीन करने के लिए, उस वैसे एरिया को रिस्टोर करने के लिए, या स्पेशल पॉलिसी चेंजेस करने के लिए जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो हमारे सेंटर को क्या कर सकता है, वो सजेशंस दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। दूसरा, इसी तरीके से जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। जैसे मान लीजिए कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, या स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करना चाह रही है, या कोई पॉल्यूटेड एरिया है उसके पॉल्यूशन को चेक करना है, तो उसके लिए एडवाइस जो है वो हमारा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगा। अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में डिफरेंट आपके ऑफिशियल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसमें आपके एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे और डिफरेंट मेंबर्स उसमें आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब इनका मेन रोल है पॉल्यूशन को चेक करना। अब जैसे मान लो कि कहीं पे हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, जैसे मान लो माइनिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं, डैम क्रिएट करने जा रहे हैं, या कोई दूसरा स्टोन क्वेरिंग की इंडस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, या कोई हैजर्डस इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होगा। अब ये जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, अगर मान लीजिए जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं वो उसका एरिया ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, या वो स्मॉलर टाइप का प्रोजेक्ट है, ज्यादा उसमें फंड्स नहीं इन्वॉल्व हैं, तो वैसे प्रोजेक्ट का जो क्लियरेंस है वो हमें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है। जैसे मान लीजिए मुझे पटना में कोई अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है। अब उसके लिए मुझे परमिशन लेना होगा किससे, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बहुत कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ जिसका इम्पैक्ट स्टेट की बाउंड्री से भी ज्यादा होगा, काफी एरिया में इम्पैक्ट होगा, तो उसके लिए परमिशन हमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना होगा। जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो हमें आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना होगा। तो डिफरेंट एक्ट्स हैं। एयर एक्ट में भी मेंशन किया गया है कंस्टिट्यूशन ऑफ
आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। लेकिन सबसे पहले ये जो मेंशन था कि हमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंस्टिट्यूट करना है, वो किसमें मेंशन था? आपके वाटर एक्ट में मेंशन था। वाटर एक्ट में सिर्फ कुछ आपके जो स्टेट्स थे वहीं वहीं पे आपके सेंट्रल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या किए गए थे? कंस्टिट्यूट किए गए थे। लेकिन बाद में जब 1981 में हमारा एयर एक्ट आया तो वैसे एरियाज जहां पे आपके पहले से स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं थे वहां फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया गया। और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरे स्टेट में जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको वो सॉल्व करते हैं। अपने जुरिडिक्शन में जो भी पॉल्यूशन होगा उसको सॉल्व करना उनका रोल है, उनका पावर है। प्लस वो रिस्टोर करेंगे इन्वायरमेंट को और वहां प्रॉपर वो ट्रेनिंग देंगे। जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो एक नोडल एजेंसी और वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। जितने भी आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स हैं या जो आपके एनजीओज हैं या डिफरेंट एकेडमिया हैं या जो डिफरेंट इंजीनियर्स हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने का भी काम क्या है? आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ट्रेनिंग देने का भी काम है और अवेयर करना है लोगों का, अवेयरनेस का भी एक रोल है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है आपका एयर एक्ट, तो नोट डाउन कर लीजिए एयर एक्ट के बारे में। हेडिंग लिखिए, द एयर एक्ट 1981, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एयर within bracket prevention and control of pollution bracket close act 1981। फर्स्ट हेडिंग लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एयर एक्ट। स्टार्ट कीजिए। in order to prevent in order to prevent and control the pollution of air, in order to prevent and control the pollution of air, in order to prevent and control the pollution of air, in order to prevent and control the pollution of air, comma, the parliament passed the parliament passed the parliament passed this legislation the parliament passed this legislation the parliament passed this legislation in the year 1981. The parliament passed this legislation in the year 1981. The parliament passed this legislation in the year 1981. Full stop. It came into force. It came into force. It came into force from 30th March 1981. It came into force. It came into force from 30th March 1981. It came into force from 30th March 1981. What is the The date of implementation? 30th March 30th March 1981. It came into force from 30th March 30th March 1981. The main objective of the Air Act, the main objective of the Air Act, the main objective of the Air Act, the main objective of the Air Act as enshrined in its preamble is, 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 to preserve the quality of air, to preserve the quality of air, to preserve the quality of air,
to preserve the quality of air and to control air pollution. To preserve the quality of air and to control air pollution. To preserve the quality of air and to control air pollution. The main objective of the Air Act, as enshrined in its preamble, is to preserve the quality of air and to control air pollution. Full stop. The Air Act extends to the whole of India. The Air Act extends to the whole of India. The Air Act extends to the whole of India. अब जितने भी एक्ट्स हैं हमारे, चाहे वो एयर एक्ट हो, चाहे वो वाटर एक्ट हो, या जितने भी एक्ट हैं, वो अब पूरे इंडिया में क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। पहले के टाइम जब ये आर्टिकल 370 को नहीं रिमूव किया गया था, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में वो एक्सटेंड नहीं होते थे। जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उनका अपना लॉज था। जो हमारे नॉर्मल, जो हमारे पूरे इंडिया में जो लॉज एक्टिव थे, वो उस समय जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड नहीं होते थे। लेकिन जब से ये आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, तो जितने लॉज हैं अब जम्मू एंड कश्मीर में भी आपके क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एयर एक्ट। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एयर एक्ट। The salient features of the Air Act. The salient features of the Air Act. Note down कीजिए. The Air Act consists of 54 sections. The Air Act consists of 54 sections. The Air Act consists of 54 sections divided into 7 chapters. The Air Act consists of 54 sections divided into 7 chapters. The Air Act consists of 54 sections divided into 7 chapters. Full stop. Chapter 1. Chapter 1 containing section 1 and 2. Chapter 1 containing section 1 and 2. Chapter 1 containing section 1 and 2. Chapter 1 containing sections 1 and 2 deals with preliminary and definitions of certain terms respectively. Chapter 1 containing sections 1 and 2 deals with preliminary and definitions of certain terms respectively. Chapter 2 certain terms respectively. Full stop. अब इसको सेकंड पॉइंट के फॉर्म में लिख लो। तो चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन है और क्या वो उसमें मेंशन है, वो इजीली होगा ग्रास्प करने में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, चैप्टर 2 कंटेन्स सेक्शन 3 to 15. Chapter 2 contains section 3 to 15. Chapter 2 contains section 3 to 15. Chapter 2 contains section 3 to 15. Deals with Central Pollution Control Board. Deals with Central Pollution Control Board. Deals with Central Pollution Control Board. Deals with Central Pollution Control Board and State 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 Pollution Control Board
for the prevention and control of air pollution. 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 Chapter 2 containing section 3 to 15 deals with Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board for the prevention and control of air pollution. Next point. Chapter 3 containing sections 16 to 18. Chapter 3 containing sections 16 to 18. Chapter 3 containing sections 16 to 18 lays down the powers and functions. Chapter 3 containing sections 16 to 18 lays down the powers and functions of air pollution control boards. Air pollution control boards. Air pollution control boards lays down the power and functions of air pollution control boards. अब यहाँ पे जो हमने ये टर्म यूज किया है एयर pollution control boards, इसका मतलब आपका सेंट्रल pollution control board, स्टेट pollution control board और ज्वाइंट बोर्ड, इन तीनों के लिए हमने एक टर्म यूज किया है एयर pollution control boards. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Sir, pardon, can you please repeat the 3 boards that comes within air pollution control boards? ये जो 3 बोर्ड्स है ना, ये आपके एयर में भी और वाटर में, तीनों में ये बोर्ड्स आते हैं. एक है आपका सीपीसीबी, शॉर्ट में लिख लो सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी कैपिटल्स में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी. सेकंड होता है आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी. और थर्ड है आपका ज्वाइंट बोर्ड, एंड थर्ड है आपका ज्वाइंट बोर्ड्स. ज्वाइंट. Thank you, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. चैप्टर 4 containing sections 19 to 31. Containing sections 19 to 31. Chapter 4 containing sections 19 to 31. Containing sections 19 to 31 provides for the prevention and control of air pollution. Provides for the prevention and control of air pollution. Provides for the prevention and control of air pollution. Provides for the prevention and control of air pollution. Next point. Chapter 5 containing sections 32. Chapter 5 containing sections 32. Chapter 5 containing sections 32 to 36. Chapter 5 containing sections. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Perfectly audible, sir. Yes, sir. Okay. Section 5, Chapter 5 containing sections 32 to 36. Chapter 5 containing sections 32 to 36 relates to funding, comma, accounts and audit. Relates to the funding, accounts and audit. Chapter 5 containing sections 32 to 36 relates to funding, accounts and audit. Next point. Chapter 6 containing sections 37 to 46. Chapter 6 containing sections 37 to 46.
Chapter 6 containing sections 37 to 46. Chapter 6 containing sections 37 to 46. Chapter 6 containing sections 37 to 46 deals with the penalties and procedures. Deals with penalties and procedures. Deals with penalties and procedures. Deals with penalties and procedures. Penalties and procedures. Chapter 7. Chapter 7 containing sections 47 to 54. Chapter 7 containing sections 47 to 54. Chapter 7 containing sections 47 to 54. Containing sections 47 to 54 contains miscellaneous provisions. Contains miscellaneous provisions. Contains miscellaneous provisions. Contain miscellaneous provision. नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कीजिए. नेक्स्ट पॉइंट, इसका हेडिंग लिखिए प्रिलिमिनरी. इसका हेडिंग लिखिए प्रिलिमिनरी. इसमें नोट डाउन कीजिए. चैप्टर 1 ऑफ द एयर एक्ट. चैप्टर 1 ऑफ द एयर एक्ट. चैप्टर 1 ऑफ द एयर एक्ट consists of section 1 and 2. Chapter 1 of the Air Act consists of section 1 and 2. Chapter 1 of the Air Act consists of sections 1 and section 2. Chapter 1 of the Air Act consists of section 1 and section 2. Section 1 contains short title. Section 1 contains short title. Section 1 contains short title, extent and commencement of the Air Act. Section 1 contains short title, extent and commencement of the Air Act. Section 1 contains short title. Section 1 contains short title, extent and commencement of the Air Act. Full stop. Section 2. Section 2. Section 2 provides for the definition. Section 2 provides for the definition of certain terms. Section 2 provides for the definition of certain terms. Section 2 provides for the definitions of certain terms. Section 2 provides for the definition of certain terms, namely air pollutant. Certain terms, namely air pollutant. Certain terms, namely air pollutant, comma, air pollution, air pollution, air pollution, air pollutant, comma, air pollution, comma, emission, 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 comma, occupier, 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 etc. Occupier, etc. Occupier, etc. As stated below. 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 फर्स्ट इसमें लिखिए एयर पॉल्यूटेंट. पॉइंट वाइज ही लिखना है सबको. एयर पॉल्यूटेंट, डिफिनेशन है एयर पॉल्यूटेंट का एज पर एयर एक्ट. एयर पॉल्यूटेंट. Air pollutant means any solid, liquid or gaseous substance. Air pollutant means any solid, liquid or gaseous substance. Air pollutant means any solid, liquid or gaseous substance. Air pollutant means any solid, liquid or gaseous substance, including noise present in the atmosphere
including noise present in the atmosphere, including noise present in the atmosphere, including noise present in the atmosphere, in such concentration, in such concentration, in such concentration, in such concentration as may be, as may be or tend to be injurious, as may be or tend to be injurious, as may be or tend to be injurious to human beings, as may be or tend to be injurious to human beings, as may be or tend to be injurious to human beings or other living creatures, or other living creatures, or other living creatures, or other living creatures, or plants, or plants or property, 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 or environment, or environment, or environment. फिर से इस डिफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लीजिए अगर कहीं छूट रहा है. एयर पॉल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज present in the atmosphere in such concentration as may be or tend to be injurious to human beings or other living creatures or plants or property or environment. तो सेक्शन जो आपका ये सेकंड है इसमें डिफिनेशंस है डिफरेंट टर्म्स के लिए. तो फर्स्ट आपका डिफिनेशन है एयर पॉल्यूटेंट का. तो एयर पॉल्यूटेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस हो सकता है जो कि हार्मफुल हो, अगर उसका जो एक कंसंट्रेशन है अगर वो विद इन एक परमिसिबल लिमिट से हायर अगर कंसंट्रेशन है, और वो अगर वो हार्म पहुंचाता है ह्यूमंस को या एनिमल्स को या प्लांट्स को या हमारे इन्वायरमेंट को एज ए होल, तो हम उसे पॉल्यूटेंट कंसीडर करेंगे, उसे हम एयर पॉल्यूटेंट कंसीडर करेंगे. जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उसको जनरली हम लोग एयर पॉल्यूटेंट कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक गैस नहीं है. लेकिन अगर उसका कंसंट्रेशन एक बेसिक जो उसका एयर में एक एम्बिएंट कंसंट्रेशन है, अगर उससे ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा तो हम उसे क्या एक एयर पॉल्यूटेंट कंसीडर करेंगे. हम लोग जानते हैं कि एयर में अराउंड आपका 300 ppm के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. लेकिन अगर इससे कंसंट्रेशन मान लीजिए 400 ppm हो जाता है तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, वो आपका एयर पॉल्यूटेंट है. इसी तरीके से और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं या आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, सूट है, हैवी मेटल है, आपके एल्गी या फंगल स्पोर्स हैं, इनको भी हम लोग एयर पॉल्यूटेंट कंसिडर करते हैं क्योंकि ये अनीस कॉज करते हैं, है ना, ये हार्म करते हैं ह्यूमन बींग्स को. बहुत सारे जो आपके एयर पॉल्यूटेंट्स हो हैं, जैसे सॉलिड में आपके जितने भी आपके पार्टिकुलेट मैटर है वो सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट है. फिर गैसियस में आपके डिफरेंट गैसेज हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, NOx है. आपका NOx में 3 गैसेज होती है जो कि आपका NO है, NO2 है, N2O है. अब ये सब जो गैसेज हैं या आपका कार्बन के जो गैसेज हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्टली जो है वो क्या है, वो एयर पॉल्यूटेंट है. ये सब क्या है, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट है. इसी तरीके से एसिड रेन जो है वो भी क्या है, आपका एयर पॉल्यूटेंट है. ये एक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है. तो इस लॉ के अंडर एयर पॉल्यूटेंट को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है. अब नेक्स्ट डिफिनेशन है एयर पॉल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इसमें लिखिए, इट मींस द प्रेजेंस ऑफ एनी एयर पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर. इट मींस द प्रेजेंस ऑफ एनी एयर पॉल्यूटेंट in the atmosphere. It means the presence of any air pollutant in the atmosphere. It means the presence of any air pollutant in the atmosphere. It means the presence of any air pollutant in the atmosphere. Next definition है emission. Next definition है emission. 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 Emission.
It means any solid, liquid or gaseous substance. It means any solid, liquid or gaseous substance. It means any solid, liquid or gaseous substance. It means any solid or liquid or gaseous substance coming out of any chimney, 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 comma, duct, DUCT duct, DUCT duct, or flue, FLUE, duct or flue or any other outlet. 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 अब एमिशन क्या है? एमिशन कोई भी अगर आपका पॉल्यूटेंट है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो आपका गैसियस फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमिशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा थर्मल पावर प्लांट्स है, वहां उसके चिमनी से आपके जो फ्लाई ऐश है वो रिलीज होते हैं एयर में, तो वो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एमिशन बोलेंगे। या जो हमारे व्हीकल से, हमारे जितने भी आपके व्हीकल्स हैं उनके अंदर क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन होता है, और इसके अंदर क्या होता है? फ्यूल कंबशन होता है फ्यूल का। और जितने भी हमारे व्हीकल्स है मोस्टली, वो हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, पेट्रोल का या डीजल का यूज करते हैं। अब इन इंटरनल कंबशन इंजन की जो इफिशियंसी है वो 100% तो इफिशियंसी होती नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है? कोई क्वेश्चन है? Sir, how can we say that noise can be considered as a part of air pollutant? नॉइज जो है, नॉइज क्योंकि वो एयर में ही ट्रेवल करता है मोस्टली, उसको एक इसलिए हम लोग उसको एनर्जी, एक मीडियम फॉर्म ऑफ चाहिए एनर्जी होता है है नॉइज। ट्रैवल करने के लिए। नॉइज जो है आपको मीडियम की जरूरत होती है, और मोस्टली वो एयर में ही क्या होता है? ट्रेवल होता है। जैसे हम लोग देखोगे साउंड प्रूफ रूम बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? या तो वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि नॉइज जो है आपका वो चेक हो जाता है। मोस्टली क्या है, एयर के थ्रू ही ये ट्रेवल करता है, इसलिए इसको ऐड किया गया था नॉइज को आपके एयर पॉल्यूशन में। बाद में फिर एक अलग रूल बना दिया गया, एक अलग जो आपका नॉइज पॉल्यूशन के लिए जो रूल्स है, बाद में एक अलग से रूल बना दिए गए। जैसे जैसे जरूरत पड़ी उस तरीके से हमारे कंट्री ने, हमारे जो लेजिस्लेचर है उसने लॉ बनाया। जैसे सबसे पहले वाटर का लॉ बना लिया, जब वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज होने लगे। फिर एयर का बनाया। तो क्योंकि पहले उस समय नॉइज के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं था, तो पहले नॉइज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ऐड कर दिया गया हमारे एयर में, एयर पॉल्यूशन में ही। ठीक है। फिर बाद में क्या गया, अलग से नॉइज के लिए जब और भी बहुत इश्यूज होने लगे, जैसे बहुत लोगों ने, ऐसा कुछ केसेस हैं जिसमें कुछ लोगों ने बोला कि हमारा राइट है कि हम रिलीजियस प्लेसेस में हम वर्शिप करने के लिए हम ये लाउड स्पीकर्स का यूज करेंगे, है ना। तो फिर अलग से एक स्पेशल रूल बनाया गया ताकि जो नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है उसको चेक कर सके, या नॉइज पॉल्यूशन को हम लोग रिड्यूस कर सके, है ना। तो ये अच्छा, इसके बाद क्या मैं बात कर रहा था? हाँ, तो जैसे व्हीकल्स में हम बात कर रहे थे, तो व्हीकल्स में हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन का यूज करते हैं। अब इसमें फॉसिल फ्यूल जो हम यूज करते हैं वो 100% बर्न नहीं होता है, तो इसमें बहुत सारे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं। जो फॉसिल फ्यूल है वो तो हाइड्रोकार्बन, एक कम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है ना, जैसे आपका बेंजीन है या मीथेन है या अदर जो आपके हाइड्रोकार्बन है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। और ऐसा पाया गया है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये क्या है? आपके कार्सिनोजेनिक है और म्यूटाजेनिक है। ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं और म्यूटेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो व्हीकल से जो आपका एग्जॉस्ट निकल रहा है उसको हम लोग वेहिकुलर एमिशन बोलते हैं। तो ये जो गैसियस एमिशन जो है वो गैसियस एमिशन भी हो सकता है, या आपकी जो इंडस्ट्रीज है, जैसे मान लो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है या एसिड मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्री है, वो जो वेस्ट वाटर रिलीज करती है, या जो लेदर टैनरीज हैं वो जो आपके वेस्ट वाटर को रिलीज करती हैं जिसमें आपके हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे? उनको भी हम एमिशन की तरह कंसिडर करेंगे। तो एमिशन जो है वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, और वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट डिफिनेशन है आपका ऑक्यूपायर।
नेक्स्ट डिफिनेशन है ऑक्यूपायर, OCCUPIER, ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर, इसका डिफिनेशन लिखिए, in relation to any factory or premises, 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 means the person, means the person, means occupier means the person, occupier means the person, occupier means the person who has the control, who has control over the affairs of the factory, who has control over the affairs of the factory, who has control over the affairs of the factory, who has control over the affairs of the factory, who has control over the affairs of the factory or the premises, or the premises, or the premises, or the premises, and includes, and includes, and includes, and includes, in relation to any substance, 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 comma, the person in possession of the substance, 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 the person in possession of the substance। फिर से रिपीट कर रहा हूं, in relation to any factory or premises, occupier means the person who has the control over the affairs of the factory or the premises, and includes, in relation to any substance, comma, the person in possession of the substance, the person in possession of the substance, full stop। अब एयर एक्ट जो है, एयर एक्ट में डिफरेंट प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट प्रोविजंस मेंशन है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए जो आपका एक ऑफिसर होगा या एक जो पूरे अफेयर्स को देख रहा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्यूपायर कंसिडर करेंगे। या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आपके हेवी मेटल्स का यूज करती है या आपके हैजर्डस केमिकल का यूज करती है, तो वो जो पर्सन है जिसको, जिसकी वहां पे ड्यूटी है उस केमिकल को हैंडल करने का, उस केमिकल को प्रॉपरली स्टोर करने का, उस केमिकल के प्रॉपरली, या जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हैजर्डस वेस्ट, उसकी प्रॉपरली उसको हैंडलिंग, मैनेजमेंट और उसके वेस्ट मैनेजमेंट का जिस पे ड्यूटी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्यूपायर कंसिडर करेंगे, जो कि लायबल है, जो कि आंसरेबल है उस फैक्ट्री के फंक्शनिंग के लिए या उस प्रीमिसेस की फंक्शन कंसिडर करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि जब कोई इंडस्ट्री में आपका इन्वायरमेंटल ऑडिट हो, तो जो आपको ऑक्यूपायर है वही क्या है, आंसरेबल है। अगर वहां पे आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं और उन्हें वहां कुछ ऐसा पॉल्यूटेंट मिलता है या ऐसा सैंपल मिलता है या ऐसा कुछ आपके ऐसा कोई प्रोसेस दिखता है उनको कि वो प्रॉपरली एयर एक्ट के प्रोविजंस के अंडर ना हो या प्रॉपरली वो प्रॉपर मेथड का यूज ना कर रहे हो, तो उसके लिए आंसरेबल क्या होगा, आपका ऑक्यूपायर होगा। और कभी भी जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो भी आपके एक्सपर्ट्स आते हैं, एयर का सैंपल, वाटर का सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो जनरली ऑक्यूपायर के प्रेजेंस में ही करते हैं। जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जैसे एयर का सैंपल है, वाटर का सैंपल है, जितने भी आपके एक्सपर्ट्स होते हैं ना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, इनके पास पावर है कि वो एनी टाइम भी जाके आपके किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऐसे प्रीमिसेस में जाके वो एयर के सैंपल, वाटर के सैंपल या किसी प्रोडक्ट के सैंपल को वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली ये एक जो ऑक्यूपायर होगा या जो एक पर्सन होगा जिसको कंपनी ने ऑथराइज कर रखा होगा, उसके सामने सैंपल कलेक्ट किया जाता है, फिर उस सैंपल को क्या कर दिया जाता है, सील किया जाता है, उसके प्रेजेंस में दोनों लोगों का साइन होता है, और फिर जो एक
स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लेबोरेटरी है या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑथराइज्ड लेबोरेटरी है, वहां इस सैंपल को क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, और वहां पे इस सैंपल को क्या किया जाता है, फिर चेक किया जाता है, उसकी एनालिसिस होती है, और इसका जो कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा, जो इंडस्ट्री है जहां से हमने सैंपल कलेक्ट किया है वो उस कॉस्ट को बियर करता है, और फिर उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये जो प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ है कि नहीं, और अगर मान लीजिए वो प्रॉपरली लॉ के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर उन पे पेनाल्टी हो सकती है या उनको प्रिजन में भी सेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये पहले जो अभी आपने इतना लिखा ये क्या था, ये चैप्टर 1 था, ठीक है ना, ये चैप्टर 1 का पार्ट था, इसमें 2 सेक्शन हमने देखे। अब चैप्टर 2 देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है ये हम चैप्टर 2 में देख रहे हैं, मतलब वो सेक्शन 1 था या हम सेक्शन, अच्छा वो सेक्शन 1 था, सॉरी चैप्टर नहीं, वो सेक्शन 1 था। अब हम सेक्शन 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेक्शन 2 में क्या मेंशन है इसमें नोट डाउन कीजिए। सेक्शन 2 में जनरली जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके बारे में मेंशन है, तो इसमें लिखें, इसमें लिखिए सर इन चैप्टर 2 ना। हाँ चैप्टर 2, इसमें लिखिए चैप्टर 2 कंटेन्स सेक्शन 3 to 15। चैप्टर 2 contains section 3 to 15. Chapter 2 contains section 3 to 15 for constitution and powers of. Chapter 2 contains section 3 to 15. Chapter 2 contains section 3 to 15 for constitution and powers of, for constitution and powers of Central and State Pollution Control Board. 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 इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेक्शन 3 of the Air Act, Section 3 of the Air Act provides that, Section 3 of the Air Act provides that, Section 3 of the Air Act provides that the Central Pollution Control Board, the Central Pollution Control Board, Central Pollution Control Board को शॉर्ट में CPC भी लिख सकते हैं। Section 3 of the Air Act provides that the Central Pollution Control Board, the Central Pollution Control Board, constituted under Section 3, constituted under Section 3, constituted under Section 3, constituted under Section 3 of the Water Prevention and Control of Pollution Act, constituted under Section 3 of Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, और शॉर्ट में वाटर एक्ट भी लिख सकते हैं 1974, अंडर सेक्शन 3 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, shall also exercise the powers, shall also exercise the powers and perform the functions, shall also exercise the powers and perform the functions, shall also exercise the powers and perform the functions, shall also exercise the powers and performs the functions of the Central Pollution Control Board, of the Central Pollution Control Board, of the Central Pollution Control Board for the prevention and control of air pollution, for the prevention and control of air pollution, for the prevention and control of air pollution under this act, for the prevention and control of air pollution under this act, for the prevention and control of pollution under this act, for the prevention and control of air pollution under this act, full stop. This extension of jurisdiction, this extension of jurisdiction of the central board, this extension of jurisdiction of the central board, this extension of jurisdiction of the central board under the Water Act,
this extension of jurisdiction of the Central Board under the Water Act, the extension of jurisdiction of the Central Board under the Water Act, to the Air Act, will not affect the extension of the jurisdiction of Central Board under the Water Act to the Air Act will not affect in any way, the exercise of power and performance, the exercise of power and performance of a function under the act, full stop. The purpose of extension of jurisdiction is to prevent the multiplicity of boards. The purpose of extension of jurisdiction is to prevent the multiplicity of boards. The purpose of extension of jurisdiction is to prevent the multiplicity of boards and members relating to the prevention and control of pollution. Members and boards relating to the prevention and control of pollution. Multiplicity of boards and members relating to the prevention and control of pollution. Full stop. तो जो एयर एक्ट का सेक्शन 3 है उसमें क्या मेंशन किया गया है कि जो पहले से हमारे आपके सेंट्रल बोर्ड हैं वो क्या करेंगे, वही फंक्शन करेंगे हमारे एयर एक्ट में भी। क्योंकि अगर मान लीजिए डिफरेंट एक्ट्स के लिए हम अलग अलग बोर्ड्स बनाने लगेंगे तो एक क्या होगा, मल्टीपल बोर्ड्स बन जाएंगे और ऑलमोस्ट उनका क्या होगा, सिमिलर फंक्शन होगा। जैसे मान लीजिए एयर एक्ट अलग है, वाटर एक्ट अलग है, नॉइस के लिए आपके रूल्स आ रहे हैं, या अदर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो अगर हर एक्ट के लिए अलग अलग हम सेंटर पे और स्टेट लेवल में अलग अलग हम लोग मशीनरी बनाने लगे, अलग अलग हम लोग डिपार्टमेंट बनाने लगे, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसलिए क्या किया गया कि जो पहले से आपके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वही आपका फंक्शन करेगा इस एक्ट के भी अंडर में। मल्टीप्लिसिटी को चेक करने के लिए सेम मेंबर्स को और पावर्स और फंक्शंस दिए गए ताकि वो एयर पोल्यूशन को भी अपने एरिया ऑफ जुरिडिक्शन में क्या कर सके, चेक कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, वो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज पर एयर एक्ट, और एज पर इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ योर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज पर योर एयर एक्ट। तो ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर्स और फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग इसका, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना 10:15 से। हेलो, यस सर, लेकिन क्लास कैंसिल हो गया सर। अपना नेक्स्ट क्लास पॉलिटिकल साइंस है बट वो कैंसिल है, तो मैं 10:15 तक ले लेता हूँ। ठीक है ना, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं 10:15 तक। एक मिनट, इसका कॉल आ रहा है। तो ये लिख लो, फंक्शंस ऑफ, इसको स्टार्ट कर देते हैं, 2-3 मिनट में ये ओवर हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, और सेंट्रल बोर्ड का मतलब सीपीसीबी, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। लिखिए, द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, the main function of the central board, the main function of the central board is to improve the quality of air. The main function of the central
board is to improve the quality of air. The main function of the central board is to improve the quality of air and to prevent, control or abate, and to prevent, control or abate, and to prevent, comma, control or abate, 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 abate करना मतलब check करना, and to prevent, control and abate air pollution in the country, and to prevent, control or abate air pollution in the country, air pollution in the country. In addition to the main function, in addition to the main function, in addition to the main function, the central board may exercise the following functions. 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 First point, to advise the central government on any matter, to advise the central government on any matter, to advise the central government on any matter, to advise the central government on any matter concerning the improvement, concerning the improvement of the quality of air, to advise the central government on any matter concerning the improvement of quality of air, advise the central government on any matter concerning the improvement of quality of air, improvement of the quality of air, and prevention, control or abatement of air pollution, and the prevention, control or abatement of air pollution, and the prevention, control and abatement of air pollution, and the prevention, control and abatement of air pollution, and the prevention, control and abatement of air pollution, and the prevention, control and abatement of air pollution. Next function लिखिए, to plan and cause to be executed, to plan, Hello. हाँ हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ किसी को कोई क्वेरी है? नेक्स्ट No, पॉइंट sir. लिखिए, Nice, sir. Plan- Continue. हाँ, to plan and cause to be executed, to plan and cause to be executed, to plan and cause, CAUSE, cause to be executed a nationwide program, a nationwide program for the prevention, control or abatement of air pollution. Plan, to plan and cause to be executed a nationwide program for the prevention, control or abatement of air pollution, for the prevention, control or abatement of air pollution, for the prevention, control or In abatement of nationwide, sir, pardon, in nationwide. program for the prevention, control and abatement of air pollution. Plan Sir, and cause to be, repeat from starting. to plan and cause to be executed, to plan and cause to be executed a nationwide program, a nationwide program, a nationwide program for the prevention, for the prevention, for the prevention and control, prevention, control, prevention, prevention, control and abatement of air pollution, prevention, control or abatement of air pollution, prevention, control or abatement of air pollution. Next point लिखिए, to coordinate the activities of the state boards, to coordinate the activities of the state boards, to coordinate the activities of the state board, to coordinate the activities of the state boards, to coordinate the activities of the state boards and resolve disputes among them, and resolve disputes among them, and resolve disputes among them, and resolve disputes among them. अब ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या है, एक नोडल एजेंसी है, वो सारे जो आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको वो एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, तो वो एक तरीके से क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा जितने भी आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या जॉइंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके साथ.
अब साथ में क्या है, बहुत बार क्या होता है कि कुछ जो आपके इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है या जो पॉल्यूशन केसेस हैं, वो क्या होते हैं, आपके ट्रांस बाउंड्री होते हैं। हो सकता है कोई रिवर जो है वो दो एरिया में क्या है, दो स्टेट्स के बाउंड्री से को क्रॉस कर रही है, और उस रिवर के पॉल्यूशन के लिए क्या है, एक जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो दूसरे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जिम्मेदार समझ रहा हो, या कह रहा हो कि उन्होंने अपने एरिया से पॉल्यूशन चेक नहीं किया है, या कोई जो साइट है जो बहुत सीवियरली पॉल्यूटेड साइट है, वो क्या है, वो दो स्टेट बाउंड्रीज में पड़ रही है। तो उसमें क्या होगा, डिस्प्यूट्स होंगे दो बोर्ड्स के बीच में। तो वैसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम भी किसका है, आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस and guidance to the state board, to provide technical assistance to provide technical assistance to provide technical assistance and guidance to the state board, to provide technical assistance and guidance to the state board, to provide technical assistance and guidance to the state boards, comma, carry out and sponsor investigations, carry out and sponsor investigations, carry out and sponsor investigations, carry out or and sponsor investigations and research, carry out and sponsor investigation and research, investigation and research relating to the problems of air pollution, and research relating to the problems of air pollution, and research relating to the problems of air pollution, and prevention, control or abatement of air pollution, and prevention, control or abatement of air pollution, and prevention, control or abatement of air pollution, and prevention, control and abatement of air pollution. Next point, to plan and organize the training of persons, to plan and organize the training of persons, to plan and organize the training of persons, to plan and organize the training of the persons engaged or to be engaged or to be engaged in programs, plan and organize the training of the persons engaged or to be engaged in programs, engaged or to be engaged in programs for the prevention, control or abatement of air pollution, for the prevention, control and abatement of air pollution, for the prevention, control and abatement of air pollution, such terms and conditions, such terms and conditions, such terms and conditions as the central board may specify, 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 full stop. अब स्टेट पॉल्यूशन Sir, कंट्रोल बोर्ड का, हाँ Sir, will you please repeat Sir, the last part? engage for the prevention and अच्छा, to plan and organize the training of persons engaged or to be engaged in programs, to plan and organize the training of the persons engaged or to be engaged in programs, engaged or to be engaged in programs for the prevention, control or abatement of air pollution, for the prevention, control or abatement of air pollution, for the prevention, control and abatement of air pollution, for the prevention, control and abatement of air pollution, for the prevention, control and abatement of air pollution, such terms as such terms and conditions, such terms and conditions, such terms and conditions, such terms and conditions as the central board may specify, 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 फुल स्टॉप। अब दूसरा फंक्शन क्या है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, कि ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक तो जितने भी आपके एक्सपर्ट्स होंगे, मान लो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हैं, या जो आपके डिफरेंट एनजीओज हैं जो कि पॉल्यूशन अबेटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को क्या करना है, उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको वो जो भी नए प्रोसीजर्स हैं या जो नए प्रोसेसेस हैं उनमें उनको वो क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, है ना। उनका जैसे ये प्रोग्राम होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं
रिफ्रेशर टाइप का एक कोर्स या वो ट्रेनिंग, एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वो ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि वो जो लोग हैं उन्हें उनके स्किल्स को वो क्या कर सके, डेवलप कर सके, ताकि वो अपने फील्ड में जाके वो सर्टेन पॉल्यूशन को जाके वो चेक कर सके या उसको अबेट कर सके, उस टाइप के पॉल्यूशन। अब इसमें एक और क्या है कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो स्टेट बोर्ड को टेक्निकल असिस्टेंस देता है। जैसे हो सकता है कि कहीं पे जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके पास वैसे एक्सपर्ट नहीं हो जो पार्टिकुलर टाइप के पॉल्यूशन को चेक कर सके, तो वो फिर अपने एक्सपर्ट्स को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भेजेगा, या वहां के जो लोग हैं उनको वो ट्रेनिंग उस तरीके से प्रोवाइड करेगा ताकि वो जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है उन्हें मिल जाए। या फिर जैसे मान लीजिए कोई एरिया है और बहुत ज्यादा वहां पॉल्यूशन हो गया और वहां पे जो मेंबर्स हैं वो उस पॉल्यूशन को नहीं चेक कर पा रहे, तो एक्सपर्ट कमेटी वहां पे जाएगी, वो वहां पे रिसर्च करेंगे, सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और फिर वो इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे आफ्टर एनालिसिस ऑफ सैंपल कि किस तरीके से इस पॉल्यूशन को हम चेक कर सकते हैं या किस तरीके से हम इस एरिया के पॉल्यूशन को रिमूव करके फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, जो नेचुरल वहां का कंडीशन है किस तरीके से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम क्या है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो डिफरेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करती है ना। जैसे जितने भी आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो अपने एरिया ऑफ जुरिडिक्शन में एयर का डेटा, वाटर का डेटा, सॉइल का डेटा कलेक्ट करते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन का डेटा को, और ये सारे डेटा को वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ शेयर करते हैं। और अल्टीमेटली क्या है कि ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो उस डेटा के थ्रू रिसर्च करती है और इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है कि हमारे कंट्री का जो पॉल्यूशन लेवल है, एयर पॉल्यूशन लेवल, वाटर पॉल्यूशन लेवल कैसा है, वो इम्प्रूव हो रहा है क्वालिटी या क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। इस तरीके से वो डिफरेंट सिटीज को ईयर मार्क करते हैं कि ये जो सिटीज हैं या ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ये यहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है, यहाँ पे हमें वर्क करना है, पॉल्यूशन को हमें चेक करना है। तो ये सब वो रिपोर्ट भी पब्लिश करने का फंक्शन है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। नेक्स्ट है टू ऑर्गेनाइज थ्रू ए मास मीडिया, टू ऑर्गेनाइज थ्रू ए मास मीडिया, to organize through a next point here, to organize through a mass media, to organize through a mass media comprehensive programs, to organize through a mass media comprehensive awareness program, comprehensive awareness program, to organize through a mass media comprehensive awareness program, comprehensive awareness program for the prevention, control and abatement of air pollution, for the prevention, control and abatement of air pollution, for the prevention, control or abatement of air pollution, for the prevention, control and abatement of air pollution। अब मास मीडिया के थ्रू ये फंक्शन ए नोट डाउन हो गया, आप लोगों ने कर लिया। टू ऑर्गेनाइज थ्रू ए मास मीडिया कंप्रीहेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब मोस्टली हमारे जो सिटीजन्स हैं बहुत बार ऐसा होता है कि वो अवेयर नहीं होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि हम लोग जनरली जब भी हमारे लोकेलिटी में जो स्वीपिंग होती है, जब वो जो स्वीपर है जब वो सारे वेस्ट को एक जगह कलेक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो उसे बर्न कर देता है। जबकि ये क्या है, ये एक इलीगल वर्क है। ये क्या है कि ये इसके लिए क्या हो सकता है कि अगर कोई वेस्ट को बर्न करता है ना तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है पेनाल्टीज की, क्योंकि अगर आप वेस्ट को बर्न करते हो तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। और स्पेशल पेनाल्टीज हमारे एयर एक्ट में ऐसा मेंशन किया है कि अगर कोई वेस्ट को बर्न करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को या आपके प्लास्टिक या अदर वेस्ट को, तो उसके लिए पेनाल्टीज मेंशन है। क्योंकि हम लोग वेल अवेयर नहीं, हम लोग अवेयर नहीं है, इसलिए हम बहुत सारे ऐसे एक्शंस करते हैं जिसके कारण जो एयर है, एयर क्वालिटी जो है वो हमारी डिग्रेड होती है। तो इसके लिए लोगों को क्या करना है, हमें अवेयर करना है। या आप देखोगे कि लोग प्रॉपरली अवेयर नहीं है, इसलिए जो विलेजेस में जो लोग फ्यूल वुड का यूज करते हैं या कोल का यूज करते हैं, चूल्हा का यूज करते हैं जो घरों के अंदर फूड कुकिंग के लिए, तो वो प्रॉपर वैसे एरिया में नहीं कुक करते हैं जहां प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एयर एक्सचेंज हो। इस कारण से क्या देखा गया है कि जो विलेजेस में आपकी लेडीज हैं जो कि फ्यूल वुड पे या कोल पे फूड कुक करती हैं, वो प्रोन है बहुत ज्यादा इंडोर एयर पॉल्यूशन से, क्योंकि वो एक एरिया में प्रेजेंट है जहां पे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड या अदर हार्मफुल गैसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और फिर उसी जो पॉल्यूटेड एयर को वो बार बार क्या कर रही है, वो लेडी इनहेल कर रही है, या जो चिल्ड्रन है वो जो उस घर में प्रेजेंट है वो उस
पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो उनमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इवन लंग कैंसर भी प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए कोई लेडी जो है जो घर में फूड कुक करती है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो स्मोक इनहेल कर रही है या जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन इनहेल कर रही है फूड कुकिंग के टाइम, वो इक्वल है जैसे किसी ने 4 सिगरेट स्मोक किया हो, उसके इक्वल है ना। तो क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, इस कारण से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है या उसके कारण नेगेटिव इफेक्ट हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इसलिए अब इसका एक रोल है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कि मास मीडिया के थ्रू न्यूज़पेपर या थ्रू रेडियो और थ्रू टेलीविजन या थ्रू आपके ये सोशल मीडिया के थ्रू वो अवेयरनेस कैंपेन रन करे, जैसे कुछ एनिमेशन हो या कुछ कार्टून हो इस तरीके, या कुछ स्ट्रीट प्ले ऑर्गेनाइज करे, या ऐसा कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स वो रन करे, या एनिमेटेड वीडियोस आपके सोशल मीडिया या टीवीज पे वो रन करे, ऐसे एड्स रन करे जिससे लोग क्या हो सके, अवेयर हो सके। पहले के टाइम अभी भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं या ऐसे शॉर्ट क्लिप्स हैं जो कि लोगों में अवेयरनेस प्रोड्यूस करते हैं। या कई बार आप देखोगे न्यूज़पेपर में फुल पेज का एक एडवर्टाइजमेंट आएगा जिसमें मेंशन किया होता है, जिसमें एक्सप्लेन किया होता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, इससे ये पॉल्यूशन होता है या ये पेनाल्टीज है, वो भी उसमें मेंशन होता है। तो ये भी क्या है, रोल आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कि वो लोगों को, जनरल पब्लिक को अवेयर करेंगे ताकि हम प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके या एयर पॉल्यूशन को अबेट कर सके। अगर हो रहा है तो उसको हम फिर रिमूव कर सके। इसमें लास्ट एक फंक्शन है, नहीं अभी और फंक्शन है, लास्ट नहीं है। टू कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश, to collect, compile and publish technical and statistical data, to collect, compile and publish technical and statistical data, to collect, compile and publish technical and statistical data, to collect, compile and publish technical and statistical data, to collect, compile and publish technical and statistical data, to collect, compile and publish technical and statistical data relating to air pollution, relating to air pollution, relating to air pollution, relating to air pollution, and to demise measures, and to demise measures, DEMISE, and to demise measures, and to demise measures, and to demise measures for its effective prevention, for its effective prevention, control or abatement, and to demise measures for its effective prevention, control or abatement, effective prevention, control or abatement, and to prepare manuals, codes or guides, and to prepare manuals, codes and guides, and to prepare manuals, codes and guides, and to prepare manuals, 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 codes, CODS, codes or guides, manual codes or guides relating to the prevention, control and abatement of air pollution, relating to the prevention, control or abatement of air pollution, relating to the prevention, control or abatement of air pollution, prevention, control, abatement of air pollution. Next point है to lay down the standards for quality of air, to lay down the standards for quality of air, to lay down the standards for quality of air, to lay down the standards for the quality of air, to lay down the standards for quality of air. अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर स्टैंडर्ड्स भी क्या करता है, पब्लिश करता है कि एयर में किस पॉल्यूटेंट का कितना परमिसिबल लिमिट है और बियॉन्ड किस लिमिट के हम उस पॉल्यूटेंट को हम कंसीडर करेंगे कि इस एरिया में पॉल्यूशन है। जैसे मान लो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका एक परमिसिबल लिमिट है, अगर वो विद इन परमिसिबल लिमिट है तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि जिस एरिया में हमने सैंपल कलेक्ट किया है वहां विद इन परमिसिबल लिमिट है, मतलब वहां एयर पॉल्यूशन नहीं है।
लेकिन अगर वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, तो मतलब वो जो हमारा एरिया है जहां से हमने एयर सैंपल कलेक्ट किया है वो हमारा क्या है, पॉल्यूटेड एरिया है, और वहां हमें पॉल्यूशन को क्या करना होगा, चेक करना होगा, है ना। नेक्स्ट लिखिए, टू कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, to collect and disseminate information, 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 to collect and disseminate information in respect of matters, in respect of matters relating to the air pollution, in respect of matters relating to the air pollution, in respect of matters relating to the air pollution, in respect of matters relating to the air pollution, in respect of matters relating to the air pollution. Next, perform such other functions, perform such other functions, perform such other functions, perform such other functions, perform such other functions as may be prescribed, 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 as may be prescribed, as may be prescribed, full stop. ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. हेलो. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट Thank you, डे sir. जो है, हाँ, नेक्स्ट डे हम लोग स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में. Sir, what is Discuss. the meaning of disseminate? डिसमिनेट मतलब उसको स्प्रेड करना, Prevent. डिसमिनेशन किसी चीज का, Distribute. हाँ, Distribute. डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना. जैसे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो मुझे सबको वो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करना है, क्योंकि ये नोडल एजेंसी है. तो जैसे मान लो कोई नया एयर पॉल्यूटेंट हमने पाया कि ये जो नया पॉल्यूटेंट है वो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, जैसे मान लो माइक्रोप्लास्टिक है, वो तो वाटर में है या फूड पॉल्यूशन कॉज कर रहा है. अब बाद में पता चला कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक है ये भी प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है प्रोक्योर करना, और एक समझो कि एक रेडी मटेरियल, रेडी रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूस करना किसका काम है, सेंट्रल बोर्ड का. और फिर ये सारे लोगों को, जितने भी एनजीओज हैं या जितने भी आपके बोर्ड्स हैं या जितने भी कमिटीज है, उनको वो ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिसमिनेट करेंगे, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों को अवेयर करने के लिए, मतलब स्प्रेड करना इंफॉर्मेशन को, उसको डिसमिनेट करते हैं. ठीक है, तो Yes. Thank you, sir. थैंक यू. क्लास ओवर कर रहा हूँ. Thank you, sir. थैंक यू. Okay, sir. सर अभी अटेंडेंस कैसे मार्क होगा, क्योंकि बहुत लोग का रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं है सर. मैम APW भी नहीं है एक्टिवेटेड. APW एक्टिवेट नहीं है, एक sir. मिनट रुक जाओ, पोर्टल अटेंडेंस एक्टिव हुआ नहीं है हम लोग का. अभी अभी लॉग आउट मत होना, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद हो जाएगा. 2-3 मिनट के लिए अभी आप लॉग इन रहिए. मुझे लैपटॉप से लॉग इन होना पड़ेगा, 1 मिनट.
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes. आप मीटिंग लीव कर सकते हो आप लोग। Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you,